موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی آ گیا، کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب لوگ گئے اور کہے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ موسیٰ کے پاس جیسے ہی گئے لوگ، موسیٰ نے دعا کرنے کے لیے سب لوگوں سے اپیل کی چٹیال میدان میں جمع ہو جاؤ۔ چٹیال میدان میں جمع ہو گئے، دعا شروع ہوئی۔ اللہ نے موسیٰ کو کہا اے موسیٰ، تمہارے اس قوم میں ایک آدمی برا ہے، گنہگار ہے، تم اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، وہ جب چلا جائے گا تو ہم یہاں بارش نازل کر دیں گے۔ موسیٰ کہتا ہے اللہ اتنے لوگوں میں کیسے پہچانوں کہ کون برا ہے کون گنہگار ہے؟ اللہ کہتا ہے موسیٰ تمہارا کام ہے آواز دینا، میرا کام ہے پہنچانا، آواز دو۔ موسیٰ نے جیسی آواز دی اس آدمی کے کانوں میں پہنچی، وہ آدمی سمجھ گئے کہ میرے ہی بارے میں بول رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ آدمی ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سوچنے لگا کہ اگر میں یہاں سے نہیں نکلتا ہوں، میرے وجہ سے لوگوں کو بارش نہیں ہوگی، لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، یا پھر یہاں اگر رہ جاتا ہوں یا چلا جاتا ہوں لوگ کہیں گے یہی برا ہے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے ایک تدبیر سوچی، ایک دماغ میں خیال ڈالا اور اللہ سے دعا شروع کی، اللہ میں نے زندگی بھر گناہ ہی گناہ کیے ہیں، میں نے زندگی بھر خطا ہی خطا کیے ہیں، تو نے میرے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے، تم نے میرے گناہ کو چھپا دیا، یا اللہ آج بھی تو ہمارے گناہ کو چھپا دے، آج بھی ہمارے عیب میں پردہ ڈال دے۔ ہو سکتا ہے یا اللہ میں آج کے بعد سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کروں گا، آج کے بعد سے میں متقی بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ حیران ہو گئے اور کہا اے اللہ کیا بات ہے کہ کوئی گنہگار کوئی مجرم اس مجلس سے نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئے؟ اللہ کہتا ہے موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے موسیٰ کہتا ہے یا اللہ مجھے دکھائیے وہ گنہگار کون تھا؟ اللہ کہتا ہے موسیٰ میں نے زندگی بھر ان کے عیب میں پردہ ڈالتا رہا، زندگی بھر ان کے گناہ کو چھپاتا رہا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے سامنے ان کے عیب کو ظاہر کر دوں؟ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے ان کے گناہ کو بیان کر دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا موسیٰ کو کہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے تب میں نے بارش نازل کر دی، بارش ہونا شروع ہو گئے۔ اب ہم غور کر سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں دنیا کے اندر کتنے بھائیوں کو ہم نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ہم اوپر سے نیچے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے بھائی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر کتنے بھائیوں کے عیب کو ظاہر کر رہے ہیں۔ چوک چوراہے میں بیٹھ کر اس کی غیبت، چوک چوراہے میں بیٹھ کر اس کی عیب یہ بیان کرتے ہیں، ہاں فلاں کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں کے اندر فلاں برائی ہے، اس چیز سے بچیے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا مسلمانوں ہم انتشار میں بٹے ہوئے تھے، جب تک تھے لیکن اب ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہم اب تک انتشار میں بٹے ہوئے تھے لیکن اب انتشار میں نہیں بٹیں گے، ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے اور انشاءاللہ ظالم قوم کو ہرائیں گے، باطل قوم کو ہرائیں گے اور حق پر لوگوں کو لائیں گے، حق پر لوگوں کو بٹھائیں گے، حق پر لوگوں کو سطح پر لائیں گے۔ یہ بتانے کا مقصد تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو آپ کو غور سے سمجھنا چاہیے کہ ہماری حالت صورتحال کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آئیے میں آپ کو وہ ایشور جن کے بارے میں کوئی شک و الجھن نہیں، لیکن ہم اور آپ شک و الجھن میں پڑے ہیں، اللہ ہے یا نہیں۔ ایک مرچی کو جب آپ استعمال کیجئے گا پتہ لگے گا ہاں ایشور ہے، وہ مرچی اوپر سے لگے گا اس کے اندر کچھ نہیں، وہ زہر جس کو دیکھ کر لگے گا کہ اس کے اندر کچھ نہیں، لیکن جیسے زہر پیجئے گا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی موت قریب ہے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی موت واقع ہو جائیں گی۔ ایک مرچی کو جب کھائیے گا ظاہر سی بات اس میں تیکھا پن آئے گا، اس لیے اللہ پر شک و الجھن میں نہ رہا کرو اور اللہ کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ اللہ ہے تو کہا ہے۔ کوئی اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، اب اللہ کو دیکھ نہیں پاتے تو کیا اس کا مطلب اللہ ہے یا نہیں؟ حدیث یہ کہتی ہے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ، جب بھی تم عبادت کرو یہ سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور نہ کر سکو، یہ تصور کم از کم کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اللہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں
नहीं, लम यलिद वलम यूलद, वो ईश्वर ऐसा है जिनको दुनिया के अंदर किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, दुनिया के अंदर उसका ना कोई बाप है ना कोई बेटा है। आइए मैं आपको हदीस के साथ साथ कुरान की आयतें भी सामने रखी और वेदों का भी हवाला दे रहा हूँ। एकम ब्रह्मादित्यो नास्तिन हिनायास्ति नास्ति नास्ति किंचन, वो ईश्वर वो ब्रह्मा एक ही है, दूसरा नहीं। या एका इत्ता मुष्टहि, वो ईश्वर एक ही है, एको ही द्वितीयो नास, ओम निराकारम, वो निराकार है, उसकी कोई तस्वीर नहीं, न तास ये प्रतिमास। आइए इसी चीज को हदीस में ये कहा गया है, वो ईश्वर तो है, कुरान ये कहता है, कुरान की आयत ये कहती है अल्लाह है, उनका चेहरे का जिक्र मिलता है, हाथ का जिक्र मिलता है, लेकिन कैसा है, रंगत कैसे है ये हम नहीं बता सकते हैं। उसी चीज को तो मंत्र कहता है, न तासीय प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा होंगे जिनकी ना कोई फोटो होंगी, जिनकी ना कोई तस्वीर होंगी। इस सिफात को बयान करने के बाद क्या आपके दिमाग में और इसके हालात रहेंगे? क्या आपके दिमाग में जहन हो? क्या आप तजब्जुब में पड़े रहेंगे? नहीं नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम दिखा दो, दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म दिखा दो, इन तमाम इश्कालात का हल दिखा सके। लेकिन हाँ, वो कौम अगर कोई नजर आ रही है, वो धर्म अगर कोई नजर आ रहा है तो इस्लाम है, वो मुसलमान कौम है कि एक छोटे से छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए बताओ हम किसको मानते हैं, वो कहेगा अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह कितने एक है? लेकिन आप ईसाई से पूछिए, ईसाई ये कहेंगे अल्लाह तीन है या फिर तीन अलग अलग है। शक उलझन उनके दरमियान भी है। एक अगर गैर मुस्लिम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बड़े मजहब के हैं, उनसे कहा जाए तुम कितने को मानने वाले हो, कहेगा 33 कोटि देवी देवता। अगर कहो एक तरफ से नाम गिनाओ या फिर ये कहो जिसको भगवान के रूप में जानते हो और मानते भी हो, तो ये बताओ उसके यहाँ कोई बेटा हुआ था या नहीं, वो किसी का बेटा था या नहीं। अगर कोई किताब ऐसी है, कोई धर्म अगर ऐसा है, कोई धर्म अगर ऐसा है वो इस्लाम है, तो इन शक उलझन को दूर करता है और क्लियर ये जवाब देता है, ऐ लोगों जिस ईश्वर की हम और आप पूजा करते हैं वो ईश्वर अल्लाह है और उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं। लिहाजा इस शक उलझन में ना पड़े रहो। और हाँ, अगर तुम अच्छे मकाम हासिल करना चाहते हो, बुलंदी हासिल करना चाहते हो, जन्नत हासिल करना चाहते हो, तो इस्लाम के दायरे में आ जाओ, क्योंकि इस्लाम को छोड़कर किसी भी मजहब में जाओगे तो कामयाब नहीं हो सकते हो। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कोई इंसान अगर इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब की जुस्तजू में रहे, दूसरे मजहब को तलाश करने में रहे, वो शख्स खसारे में है, नुकसान में है। अगर बुलंदी हासिल करना है, अगर आपको जन्नत हासिल करना है तो इस्लाम के दायरे में आ जाइए। इसी को तो रामायण में ये कहा गया, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामद पार ना होया। आए लोगों, गुमानी से फरक्का जाने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, बहुत तरीका मिल जाएगा, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल दिए जाएंगे। आज सब रास्ते में कब्जा जमा करके रख दिया गया, वहां पर ट्रैफिक कितनी है, वो रास्ते में काफी भीड़ है, इस रास्ते में भी काफी भीड़ है। लेकिन ऐसा बंदोबस्त आज के दौर में किया जा सकता है कि आपके जगह में, आपके शहर में हवाई अड्डा बना दिया जाएगा, फिर आपको उड़ान जैसे परवाज करा के आपको एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल करा दिए जाएंगे। लेकिन जन्नत एक ऐसा रास्ता है, जन्नत का रास्ता एक ऐसा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत के बगैर वो जन्नत हासिल नहीं हो सकती है। इसी चीज को मंत्र में कहा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापा मिल्लल्लाह परम पदम। वो मेरे प्यारे साथियों, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। अगर जन्नत जाना चाहते हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत को अपनाओ। इस चीज का दावा, इस चीज का इकरार तो सब करते हैं, सब तो मानते हैं कि हमारे दरमियान कोई ना कोई नबी है, सब तो मानते मोहम्मद, सब तो मानते मोहम्मद, लेकिन हम मोहम्मद से खास वही मोहम्मद मुराद लेते हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के मानवता
ताला पूरे विश्व के हैवानात के लिए भी रहमत बनाकर भेजे थे, हम खास मुराद उसी को लेते हैं। लेकिन किसी ने इसका अलग अलग माना किया है, किसी ने नशा का माना किया है, नौज़ुबिल्लाह, ये मिलता ही नहीं है। कहाँ के ये संस्कृत है और कहाँ की ये मीनिंग है, जरा मुझे बताना। मेरे प्यारे साथियों, मेरा बताने का मकसद ही है, दुनिया के अंदर कोई इंसान अगर चाहे कि ये बड़ा आदमी है, हम उसके पास नहीं जाएंगे, दूसरे के पास जाकर अपना काम करा लेंगे, वो कर सकता है। दुनिया के अंदर कोई इंसान ये कहे हम किसी के दरवाजे में नहीं जाएंगे, अपना ऐसा दरवाजा बनाएंगे, हम ऐसा भूल-भुलैया तैयार करेंगे, ऐसा ताजमहल तैयार करेंगे, ऐसा बुर्ज खलीफा जैसी इमारत और मकान बनाएंगे कि हमें ताजमहल देखने की जरूरत ना पड़े, हमें भूल-भुलैया जाने की जरूरत ना पड़े। हम खुद इस चीज को बना लेंगे, हम खुद इस चीज को वजूद में ला लेंगे, हम वहां जाने की मुझे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा रास्ता है, मोहम्मद की शरीयत एक ऐसी शरीयत है जिसके अंदर सबको दाखिल होना है, जिसकी शरीयत को सबको पामाल करना, जिसकी शरीयत को सबको अमल करना है, जिसकी शरीयत पर सबको चलना है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाजिम पकड़ने रहना, वो ईश्वर यही तो कहता है और हमेशा ही पैगाम देता है जो इस्लाम और वेद से बिल्कुल मिलता जुलता है। जो वेद कहती है वही इस्लाम कहता है। मरने से पहले अगर ला इलाहा इल्लल्लाह किसी ने इकरार किया और जुबान से इसकी गवाही दी अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके रसूल है, इस्लाम तो यही कहता है। कोई अगर 80 साल और 70 साल की उम्र में भी इस्लाम लाए और इस्लाम की हालत में ही उनकी मौत हो, उनका इंतकाल हो, इन्नल इस्लाम यहदिबु मा काना क़ब्ला, इस्लाम लाने वाले अगर कोई 70 साल के बाद भी इस्लाम लाता है, अल्लाह के नबी फरमाते उसके तमाम पिछले गुनाह को माफ कर दिए जाते हैं, तमाम खताएं को माफ कर दिए जाते हैं। और किसी ने अगर आखिरी उम्र में भी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी की हदीस ये कहती है अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। लेकिन हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आखिरी उम्र में अमल कर लेंगे, आखिरी उम्र में नेक बन जाएंगे, आखिरी उम्र में हज कर लेंगे, पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, आखिरी उम्र में नेक अमल कर लेंगे। मैं तो ही चीज के ऊपर बहस कर रहा था कि मौत किसी के लिए फिक्स नहीं है, मौत ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, कभी भी इंसान को किसी भी जिंदगी में, चाहे नौजवानी के मराइल में हो, चाहे बुढ़ापे की आलम में हो, चाहे खोसट की आलम में हो, किसी भी मरहले में मौत आ सकती है। इसलिए मौत का मुतय्यन वक्त नहीं है, ना मौत 1 मिनट आगे और ना 1 मिनट पीछे। इसलिए जब तक आप जिंदा है ये समझिए कि हम अच्छे अमाल करते रहेंगे, अमल सालेह करते रहेंगे। वो ईश्वर जिनके बारे में ये सिफात ये बयान कर दिए गए हैं कि ना कास्य प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसे होंगे जिनकी ना कोई तस्वीर होगी, जिनकी ना कोई मूर्ति होगी। मुसलमान जब इबादत करता है, नमाज अदा करता है, उसके सामने अल्लाह की कसम कोई तस्वीर नहीं होती है, कोई फोटो नहीं होते हैं। लेकिन आज देख लीजिए बड़े बड़े महान पुरुष इंसान की तस्वीर बना लिए गए हैं। हमने देखा है बहुत सारे मजाहिब के लोगों को कि अपने आने वाले कौम में जो महान पुरुष इंसान थे, जिस तरह हमारे कौम में मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस तरह हमारे रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में महान पुरुष इंसान के नाम से जाने जाते हैं, जिसको कुरान ने ये तस्बीह दी है वह सिराजम मुनीर, जिसको कुरान ने ये तस्बीह दी है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने उनकी तस्वीर नहीं बनाए, हमने उनकी मूर्तियां नहीं बनाई, हमने उनकी स्टैचू नहीं बनाए, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, अगर वसीला भी पकड़ते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, क्योंकि ये कुरान कहता है मेरा मोहम्मद जो दे उसे ले लो और जिस चीज से रोगे उससे रोक जाओ, यही तो हमारा वसीला का तक़ाज़ा है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा और आपका अकीदा सिर्फ इस चीज पर है कि जब भी हम इबादत करें ये समझे कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसका मतलब ये कहने का है नमाज भी पढ़े तो हम ये सोचे या अल्लाह नमाज में चोरी नहीं करेंगे, रुकू सही से करेंगे, सजदा सही से करेंगे, बिल्ली की तरह और कौवे की तरह चोंच मारा जमीन में फिर उठा लिया, इस तरह चोंच मारकर सजदा नहीं करेंगे, रुकू सही तरीके से करेंगे। जब हम ये सोचेंगे अल्लाह हमें देख रहा है तो हमारा अमल साले भी अच्छे होंगे, हमारा अमाल भी अच्छे होंगे, हम सही तरीके से
उस चीज का अंजाम दे सकेंगे। हाँ, अगर हम ये सोचेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो बुराई करने भी जाए तो अल्लाह को याद आएगा और ये कहेंगे अल्लाह हमें देख रहा है। हमने एक ऐसे मकान बनाए जो दुनिया की नजरों से अंधे हैं, कोई इंसान उस चीज को देख नहीं सकता है। हम रात की तारीकी में, पहाड़ के गोसे में, समंदर के झांकों में, हम इतनी अंधेरी में कोई अगर गुनाह करे और हम ये सोचे इंसान तो हमें देख नहीं रहा है, कम से कम अगर अल्लाह को याद है तो ये सोचेंगे अल्लाह हमको देख रहा तो कोई गुनाह नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक कम सत्तो भी प्रभुदा वद्दन, वो ईश्वर ऐसे होंगे जिनको लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर तमाम सिफतें हो। वो इंसान सब हुनर जानता हो, कोई अगर डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई अगर मौलवी है तो कोई उससे बड़ा आलिम है, कोई उससे बड़ा फाजिल है, कोई अगर कारी है उससे बड़ा कोई हाफिज है। लेकिन दुनिया के अंदर एक इंसान को सारी चीजों की फजीलत हासिल नहीं। गोया के इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां है, गोया के इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां है। सारे हुनर एक इंसान को अल्लाह ने नहीं दिए हैं। लेकिन इस मंत्र की तशरीह मैं यही कर रहा हूँ कि लोग जैसा चाहेंगे अपने रब के सामने वैसा उनको मिलेगा। यानी जिसको धूप की जरूरत पड़ जाए वो कहेगा या अल्लाह तू ही धूप देने का मालिक है। जिसको बारिश की जरूरत पड़ जाए, पानी की जरूरत पड़ जाए, वो कहेगा ईश्वर तू ही बारिश देने का मालिक है। यानी धूप का मालिक तू ही है और बारिश का भी मालिक तू ही है। इस मंत्र की मैंने ये तशरीह किया है, अल्लाह जाने ये मंत्र की तशरीह सही हुआ या गलत। इसका मतलब ये है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मराहिल से उसको पुकारेंगे। इसका मतलब पानी की जरूरत जो होंगे वो अल्लाह को कहेंगे अल्लाह तू पानी देने वाला है, या अल्लाह तू इंसान को पैदा करने पर भी कादिर है, इंसान को मारने पर भी कादिर है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, यहाँ तक कि तू तमाम चीजों पर, हर चीज पर कादिर है। एक इंसान को दोबारा कैसे वजूद में लाएगा इस चीज पर भी कादिर है। मेरे प्यारे साथियों, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। मेरा बताने का मकसद ये था कि आप फिक्र आखिरत से जुड़े रहिए और हम जब भी इस दुनिया में रहें अच्छे अमाल करते रहें। आप ये ना सोचें कि हम बुढ़ापे जब आएंगे तो अच्छे अमाल करेंगे। इंशाल्लाह मैं यहाँ बेद नहीं बोल पाया, आइंदा ख्याल रखूँगा क्योंकि ये मेरे लिए नया इलाका है। अब नए इलाके में जाहिर सी बात है क्या बोले नहीं बोले इसके बारे में मशवरा भी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए खैर आपसे माजरत खाऊँ। इंशाल्लाह कभी भी अगर आएंगे तो इसी के ऊपर तफसीलात से बयान करेंगे। और आप सबसे एक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी ज़ुबान से कोई अगर आपको ठेस और तकलीफ़ पहुँची हो, हमारी तरफ से कोई अगर गुस्ताखी हो आप माफ़ कीजिएगा। मैं आपके एक छोटा भाई हूँ, आप भी हमारे रिश्ते में भाई हैं और कुरान और हदीस तो यही पैगाम देते हैं मुसलमान सब आपस में भाई भाई है। लिहाजा किसी के अंदर कुछ खामियाँ हो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, अगर उसके अंदर बुराई हो उसको तन्हाई में इस्लाह भी कर देनी चाहिए। लिहाजा हम अल्लाह से दुआ करते बारी अल्लाह इन जलसों को कामयाब अता फरमाए और ये जलसा अल्लाह के फजल करम से कामयाबी के दिहाने पर पहुँचे। मज़ीद अगर इस तरह के प्रोग्राम हो अल्लाह उसको भी कामयाब करे, हम सब का अमल अमल साले हो और हम सब को अल्लाह ताला एक प्लेटफॉर्म पर कायम फरमाए और हमारे इस मुल्क में भाईचारा कायम रखें। और जो लोग फिरकों में इंतशार में बटे हुए हैं अल्लाह ताला उनको इत्तेहाद पर और एक प्लेटफॉर्म पर कायम अता फरमाए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा ख़त्म करके सबको एक भाई भाई कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।